हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स मैजिक में। और आज हम रिंग थ्योरी में आइडियल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम थ्योरम को प्रूव करेंगे दैट आर बाई ए इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ मैक्सिमल आइडियल। तो ये प्रूव करने रिंग थ्योरी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो रिंग को डिफाइन किया गया है, अ नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज सेट टू फॉर्म अ रिंग इफ द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर वैलिड, जो कि है फर्स्ट क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू plus, that is for all AB belongs to R, A plus B should belongs to R. And second property is associativity with respect to plus, that is for all ABC belongs to R, A plus bracket B plus C equals to bracket A plus B plus C। इसका मतलब है कि हम ब्रैकेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, that is for all A belongs to R there exists 0 belongs to R such that A plus 0 equals to 0 plus A equals to 0 is called 0 element of R। Additive inverse, that is for all belongs to R there exists B belongs to R such that A plus B equals to B plus A, 0, that is inverse of every element in R exists in R। And fifth property है commutative with respect to addition, that is for all AB belongs to R A plus B equals to B plus A। And the sixth property is closure with respect to dot, that is for all AB belongs to R A dot B should belong to R। And seventh property is associativity with respect to dot, that is for all ABC belongs to R A dot B equals to B A dot B dot C, that is bracket can be interchanged। And the eighth property is distributive law, that is for all AB belongs to R A dot bracket B plus C equals to A dot B plus A dot C, and bracket B plus C bracket dot A equals to B dot A plus C dot A। If the above 8 conditions hold in R, then we say that R is a ring and we write or denote R plus dot is a ring। और रिंग की हमारे पास एक और दूसरी डेफिनेशन भी है, that is a non empty set R together with two binary operation plus and dot is set to form a ring if the following axioms are valid, that is first R plus is an abelian group, that is property 1 to 5 holds, then we say that R plus is an abelian group। And second property is R dot is a semi group, that is closure and associativity holds with respect to dot। And third property is distributive law, that is for all AB belongs to C A dot bracket B plus C equals to A dot B plus A dot C, that is multiplication is distributed over addition, then we write R is a ring। In addition to above 8 conditions, one more property commutativity with respect to dot also holds, that is for all AB belongs to R A dot B equals to B dot A, then R is called a commutative ring। और अगर ऊपर की 8 कंडीशन के साथ एक और प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जैसे दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देन R इज कॉल्ड अ रिंग विथ यूनिटी। If in addition to 8 properties of ring, commutative with respect to dot and multiplicative identity exist, then R is called a commutative ring with unity। अब हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ रिंग। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म करते हैं रिंग विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और रिंग ही नहीं करते फॉर्म, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म करते हैं, जो कि इजीली प्रूव किया जा सकता है। आर प्लस डॉट को रिंग प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, जो कि हम जानते हैं कि 2 रियल नंबर का सम भी एक रियल नंबर होता है, तो क्लोजर होल्ड करती है। हम ये भी जानते हैं कि एसोसिएटिव हम 3 रियल नंबर को किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं, सम चेंज नहीं होता है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। एंड आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस होता है, जो कि 0 होता है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है और उसको हम किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो वही रियल नंबर हमें वापस मिल जाता है। एडिटिव इनवर्स भी होता है रियल नंबर में, क्योंकि हर रियल नंबर का नेगेटिव ऑफ दैट नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में होता है, तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, क्योंकि 2 नंबर को कैसे भी ऐड कर लो आगे पीछे करके तो उसमें चेंज नहीं होता है, दैट इज कम्यूटेटिव होल्ड इन रियल नंबर, हम जानते हैं। और क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, दैट 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर ही आता है, तो क्लोजर भी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी होल्ड होती ही होती है। और हम ये भी जानते हैं कि तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इस तरीके से, तो आर प्लस डॉट इज़ अ रिंग। सिमिलरली रैशनल नंबर भी रिंग फॉर्म करता है और इंटीजर्स का सेट भी रिंग फॉर्म करता है, और तीनों की यूनिटी 1 है और 0 एलिमेंट भी तीनों के 0 हैं। और सेकंड एग्जांपल है हमारा ZN ग्रुप, जिसमें ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n,
और Zn को जैसे कि हम जानते हैं कि Zn में एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें एडिशन ऑपरेशन होता है, एडिशन मॉड्यूल n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल n। ये भी एक रिंग है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल रिंग ऑफ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट, जहाँ ऑपरेशन है यूजुअल पॉलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि इसके कोफिशिएंट इंटीजर से आ रहे हैं और इंटीजर अपने आप में रिंग फॉर्म करता है, तो ZX भी रिंग बनाएगा अपने आप में। और अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जो रिंग फॉर्म नहीं करते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग नहीं बनाता है क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और सिमिलरली हमारे पास ऐसा ही सेम एक और एग्जांपल है सेट ऑफ होल नंबर्स, वो भी रिंग नहीं बनाते क्योंकि उसमें एडिटिव इनवर्स एलिमेंट्स का नहीं होता, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो उनमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते, जिसके कारण उनके पास एडिटिव इनवर्स नहीं होता, तो वो रिंग नहीं बनाते। अब हम समझते हैं फील्ड क्या होता है। अ नॉन एम्प्टी सेट F टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट is said to form a field if the following axioms holds, that is F plus is an abelian group। और abelian group की वही 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, एडिटिव इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है F में से अगर 0 एलिमेंट हटा दें तो डॉट के रिस्पेक्ट में वो abelian ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, जो कि क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, identity with respect to dot, additive inverse with respect to dot, and commutativity should hold with respect to dot। एंड फील्ड होने के लिए एक तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा है। और फील्ड को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये डेफिनेशन क्यों सही है, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो हमारे पास पहले की 8 कंडीशन पहले ही आ गई, तो हमें सिर्फ यही दिखाना रह जाता है बाकी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो फील्ड बन जाता है। और फील्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर में इसका 0 एलिमेंट 0 ही होता है और यूनिट एलिमेंट 1 होता है, और रियल नंबर में 0 एलिमेंट 0 होता है, यूनिट एलिमेंट 1 है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 एलिमेंट 0 प्लस 0 आयोटा होता है और यूनिट एलिमेंट 1 प्लस 0 आयोटा होता है। और उस प्रूफ को समझने के लिए हमें आइडियल को भी पढ़ना पड़ेगा, तो चलो आइडियल की डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट लेफ्ट आइडियल, अ नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ अ रिंग R इज कॉल्ड अ लेफ्ट आइडियल इफ इट सेटिस्फाइज 2 प्रॉपर्टीज, दैट इज फर्स्ट फॉर ऑल A B belongs to A implies A minus B belongs to A, and second property is A belongs to A and R belongs to R, then R dot A belongs to A, that is it means that A absorbs the element of R। क्योंकि रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में है तो इसे लेफ्ट आइडियल कहेंगे, और फिर अगर रिंग का एलिमेंट राइट में हो जाता है तो उसे राइट आइडियल कहते हैं। और इस राइट आइडियल की डेफिनेशन सेम ही है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ अ रिंग R इज कॉल्ड अ राइट आइडियल ऑफ R इफ फॉर ऑल A B belongs to A, A minus B belongs to A, and second property is A belongs to A and R belongs to R implies A dot R belongs to A। देखिए यहाँ पे रिंग का एलिमेंट R है में है, इसलिए ये राइट आइडियल है। और अब हम आइडियल पे आते हैं। आइडियल की डेफिनेशन, a non-empty subset A of a ring R is said to be a two-sided ideal, और both sided ideal और ideal भी कह सकते हैं, जब if A B belongs to A implies A minus B belongs to A and A belongs to A and R belongs to A implies AR belongs to A and RA belongs to A, that is ideal वो है जो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों हो तो उसे आइडियल कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है, एक रिंग के हमेशा 2 आइडियल तो होते ही हैं, एक सिंगलटन 0 एंड R आर ऑलवेज आइडियल, और सिंगलटन सेट को कहते हैं ट्रिवियल आइडियल एंड R को इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ R कहते हैं। प्रॉपर आइडियल वो होते हैं जिसमें जो आइडियल होते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ रिंग R के होते हैं। और इसके एग्जांपल है, हम रिंग को ले रहे हैं Z विद द रिंग ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज एन आइडियल ऑफ Z। इसको हम सिंपली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 2n फॉर्म को हो जाएगा, जहाँ n बिलोंग्स टू Z हो जाएगा। अब E को हमें अगर आइडियल प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ये लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि फॉर A B बिलोंग्स टू E, A माइनस B शुड बिलोंग्स टू E, जो कि आसानी से प्रूव हो सकता है। जैसे कि अगर हम E का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे 2x एंड 2y बिलोंग्स टू E,
देन अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे 2x माइनस 2y, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस वाई बिलोंग्स टू ई। जहाँ x और y z से आ रहे थे, तो x माइनस वाई भी z से आएगा, क्योंकि z अपने आप में रिंग फॉर्म करता है, तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगी z में। क्योंकि y बिलोंग्स टू z है, तो माइनस वाई एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करेगा z में, तो x माइनस वाई भी बिलोंग करेगा z में। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि a माइनस बी बिलोंग्स टू ई। अब हमें सेकंड प्रॉप शो करनी है, डैट इज़ फॉर a बिलोंग्स टू e एंड b बिलोंग्स टू z, a डॉट b बिलोंग्स टू e एंड b डॉट a बिलोंग्स टू e। तो a बिलोंग्स टू e है, तो a इस फॉर्म का होगा 2n1 टाइप, जहाँ n1 कर रहा है बिलोंग z से। सिमिलरली b बिलोंग्स टू z है, फिर हम a डॉट b को कंसिडर करेंगे, तो a डॉट b को 2n1 डॉट b लिख सकते हैं, और n1 डॉट b को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि n1 बिलोंग कर रहा है z से, b बिलोंग कर रहा है z से, और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है z में, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और n1 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो n1 डॉट b भी इंटीजर होगा, क्योंकि क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट होल्ड करता है z में। तो 2n1 b को हम किसी भी टेबल से रिप्लेस करते हैं, जैसे y भी बिलोंग करेगा z में, तो 2y फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2y बिलोंग कर गया e को। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि e एक आइडियल है z का। से हम पढ़ेंगे फैक्टर रिंग। तो फैक्टर रिंग को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अगर हम कोई भी r एक रिंग कंसिडर करें और a उसका सब रिंग लें, और सब रिंग की डेफिनेशन होती है कि a इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r एंड a इज़ अ रिंग इन इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन एज ऑफ r। तो a को हम r का सब रिंग कहते हैं। तो देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट r प्लस a, जहाँ r रिंग का एलिमेंट है और a सब रिंग है r की, ये फॉर्म करते हैं रिंग। जब ऑपरेशन इस तरह के तरीके से डिफाइंड होगा, डेट इज़ r प्लस a प्लस ब्रैकेट s प्लस a इक्वल्स टू r प्लस s प्लस a, जहाँ हमने रिंग के एलिमेंट को एक साथ कर दिया और सब रिंग वैसी की वैसी रह गई। डॉट ऑपरेशन डिफाइंड है r प्लस a डॉट s प्लस a r डॉट s प्लस a, और ये रिंग फॉर्म करते हैं जब a आइडियल होता है r का, और इसको डिनोट करते हैं हम r बाई a से, जहाँ स्मॉल r जो रिंग का एलिमेंट है और a सब रिंग है a की। इसको हम कहते हैं फैक्टर रिंग और अ क्वोशिएंट रिंग। अब हम एग्जांपल देखते हैं फैक्टर रिंग के, डेट इज़ z बाय 4z। z अपने आप में रिंग है और उसका सब रिंग 4z है, क्योंकि 4z भी अपने आप में रिंग है विथ रिस्पेक्ट यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये फैक्टर रिंग तब बनाएगा जब 4z आइडियल होगा r का, और 4z आइडियल होता है r का। वो भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि z बाय 4z को डिफाइंड होने के लिए 4z को आइडियल होना पड़ेगा z का। तो वो उसको प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू 4z, a माइनस b शुड बिलोंग्स टू 4z। तो 4z के एलिमेंट होंगे 4x टाइप के, वेयर x बिलोंग्स टू z, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो a बिलोंग्स टू 4z है एंड b बिलोंग्स टू 4z है, तो a इस फॉर्म का होगा 4x1 एंड b भी इस फॉर्म का होगा 4x2, जहाँ x1 x2 बिलोंग करेंगे z में। तो 4x1 माइनस 4x2, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ इंटीजर्स की बात चल रही है और इंटीजर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करती है इंटीजर्स में। और x2 बिलोंग्स टू z है, देन माइनस x2 बिलोंग्स टू z है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स बिलोंग करेगा z में, क्योंकि z एक रिंग है। तो फिर क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजर x1 माइनस x2 भी z में बिलोंग करेगा, तो ये इम्प्लाई करेगा 4 को हम एक नया वेरिएबल रिप्लेस करते हैं y इक्वल्स टू x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू z। तो 4y बिलोंग कर गया 4z को, क्योंकि y एक इंटीजर है और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है प्रूव करने के लिए, आइडियल प्रूव करने के लिए, दैट इज़ a बिलोंग्स टू 4z एंड r बिलोंग्स टू z, देन ar should belongs to 4z and ra should belongs to 4z।
तो ए बिलोंग कर रहा है 4z का, तो ए इस फॉर्म का होगा 4x1 टाइप, जहाँ x1 बिलोंग कर रहा है z में। तो कंसीडर करेंगे हम r डॉट a दैट इज़ r डॉट 4x1। r बिलोंग करता है z में, x1 बिलोंग कर रहा है z में। तो हम कम्यूटेटिविटी लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसोसिएटिविटी लगाएंगे और r डॉट 4x1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 भी इंटीजर ही है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है इंटीजर्स में। अब फिर कम्यूटेटिविटी से विथ रिस्पेक्ट टू डॉट हम इसको 4 डॉट r लिख सकते हैं टू x1, और इसको हम फिर एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके r डॉट x1 लिख सकते हैं। और r z से बिलोंग कर रहा है, x1 बिलोंग कर रहा है z से, देन r डॉट x1 भी बिलोंग करेगा z से, क्योंकि क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट होता है। तो इसको हम एक नया वेरिएबल y रख सकते हैं r डॉट x1 को, जो कि बिलोंग कर रहा है z को, तो इसको 4y के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ये शो कर दिया कि r डॉट a बिलोंग कर रहा है 4z को। सिमिलरली हम a डॉट r को भी शो कर सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू डॉट इन इंटीजर्स, तो ये भी ट्रू होगा। तो हमने ये शो कर दिया कि 4z इज़ एन आइडियल ऑफ z, तो z बाय 4z फैक्टरिंग बनाएगी, जो कि हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी। तो z बाय 4z के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, a प्लस 4z, जहाँ ये कोसेट होंगे जहाँ पे a बिलोंग करेगा z से, और इसके अंदर 4 ही एलिमेंट आएंगे, 0 प्लस 4z, 1 प्लस 4z, 2 प्लस 4z एंड 3 प्लस 4z। ये चारों कोसेट ही आएंगे इसमें। इसके अलावा क्योंकि कोई भी अलग कोसेट बनेगा, अगर हम इसके अलावा कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 प्लस 4z ले लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 1 प्लस 4 प्लस 4z। और कोसेट की हमें ये प्रॉपर्टी याद है कि a प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस एच। तो ब्रैकेट हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये ऐसे था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 4z। और कोसेट में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस एच इक्वल्स टू एच इफ़ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू एच। और यहाँ पे 4 बिलोंग कर रहा है 4z को, तो इसको हम सिर्फ 4z भी लिख सकते हैं। तो ये वही एलिमेंट आ गया 1 प्लस 4z। तो ये 4 डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे इस फैक्टरिंग में। और वो प्रूव करने के लिए हमें प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है, लेट R बी ए कम्यूटेटिव रिंग एंड A proper ideal A of R is said to be prime ideal if AB belongs to A implies either A belongs to A or B belongs to A for all A belongs to R। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल उस आइडियल को प्रॉपर आइडियल होना पड़ेगा, मतलब A इज़ नॉट इक्वल्स टू R। और अगर A भी बिलोंग कर रहा है A को, तो आइदर A बिलोंग करेगा A को या B बिलोंग करेगा A को, तो इसे प्राइम आइडियल कहते हैं। प्राइम नेक्स्ट हम करेंगे मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है, लेट R बी एनी कम्यूटेटिव रिंग then an ideal M is said to be a maximal ideal if and only if it satisfies two properties. First, M is not equals to R, that is M is any proper ideal of R, and second, M is contained in A is contained in R implies either M is equal to A or A is equals to R। that is अगर हम कोई भी आइडियल A ले रिंग का और जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो अगर M मैक्सिमल आइडियल है तो आइदर M इज इक्वल्स टू A और आइदर A इज इक्वल्स टू R। सिंपली इसका ये मतलब है, एग्जिस्ट नहीं करेगा जो M को कंटेन करता हो और R से छोटा हो। इसका सिंपल मीनिंग ये है, जो कि नेक्स्ट हमने लिखा भी है, दैट इज मैक्सिमल आइडियल इज एन आइडियल विच इज मैक्सिमल विथ रिस्पेक्ट टू सेट इंक्लूजन अमंगस्ट ऑल प्रॉपर आइडियल ऑफ अ रिंग। और अब हम एक प्राइम आइडियल का एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज ट्रिवियल आइडियल सिंगलटन जीरो रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्राइम आइडियल। इसको सिंपली प्रूव भी किया जा सकता है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। हमें पता है कि सिंगलटन जीरो इज ट्रिवियल आइडियल इन रिंग ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम कंसिडर करेंगे ए बी बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो। तो हमें शो क्या करना पड़ेगा, डेट इज टू शो आइदर ए बिलोंग्स टू दिस आइडियल और बी बिलोंग्स टू दिस आइडियल, क्योंकि बाय डेफिनेशन है कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आइडियल ए को, तो आइदर ए बिलोंग करेगा ए को या बी बिलोंग करेगा ए को, तभी ए
प्राइम आइडियल होगा और ए को प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। ए इधर प्रॉपर आइडियल है जेड का, तो हम प्रूव करते हैं। सिंस ए बी बिलोंग्स टू सिंगल जीरो है तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ए बी को जीरो के बराबर होना पड़ेगा। और जेड हम जानते हैं कि जेड एक इंटीग्रल डोमेन है, डैट इज अगर ए बी इक्वल्स टू जीरो है जेड में तो आइदर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो इससे हमें मिल गया ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, क्योंकि जेड एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन सिंपल है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। और जीरो डिवाइजर्स होते हैं किसी कम्यूटेटिव रिंग में। अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो अगर देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू आर सच दैट नाइदर ए इज इक्वल्स टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो बट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, देन ए एंड बी आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग। और इंटीग्रल डोमेन वो होती है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो और फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स हो, जिसमें जीरो डिवाइजर ना हो। तो जेड एक फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर है, इंटीग्रल डोमेन है। तो आइदर ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो आ गया, दिस इम्प्लाइज आइदर और बी बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट जीरो। तो हमने प्रूव कर दिया कि जीरो इज अ प्राइम आइडियल। तो अब तक हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली है जो हमारी थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज़रूरी थी। तो अब हम थ्योरम पे मूव करते हैं, थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो थ्योरम है, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड लेट ए बी एन आइडियल ऑफ आर, देन आर बाई इज फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ मैक्सिमल आइडियल। तो हम इफ़ एंड ओनली वाला केस है, तो हम एक को एज्यूम करके दूसरे को प्रूव करेंगे, फिर उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, लेट आर बाई ए इज़ अ फील्ड और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और हमें शो क्या करना है, दैट ए इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। गिवन है हमें ए इज़ नॉट इक्वल्स टू आर। तो नाउ लेट अस सपोज दैट B is any ideal of R such that A is contained in B, B is contained in R। इसको इक्वेशन स्टार दे देते हैं। सिंस B is any ideal of R, जो कि A को भी कंटेन किया हुआ है, तो हमें A को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना है। तो हमें ये शो करना पड़ेगा डेट इज़ आइदर A इज इक्वल्स टू B और B इज इक्वल्स टू R, तभी हम ये कह सकते हैं कि A इज मैक्सिमल आइडियल है। तो इफ A इज इक्वल्स टू B देन वी आर डन एंड A इज मैक्सिमल आइडियल। अगर A इज नॉट इक्वल्स टू B देन वी हैव टू शो डैट, हमें ये शो करना पड़ेगा कि B इज़ इक्वल्स टू R। तो हमें दो सेट्स को इक्वल शो करना है, तो उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा B इज़ कंटेन्ड इन R एंड R इज़ कंटेन्ड इन B। B इज़ कंटेन्ड इन R, हम अपनी एजम्पशन स्टार से कह सकते हैं B इज़ कंटेन्ड इन R। हमारा अब ये करना रह गया कि R इज़ कंटेन्ड इन B। तो ये शो करने के लिए हमें एक आर्बिट्री एलिमेंट यहाँ से लेना होगा, शो करना होगा कि वो B में भी है। तो ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ये कंसिडर करते हैं, हमें ये शो करना पड़ेगा कि यूनिटी भी B में है। तो सिंस R इज़ अ रिंग विथ यूनिटी implies 1 belongs to R, और हमें अब ये शो करना है कि यूनिट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है B से भी। सिंस A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, A B के बराबर नहीं है, तो हमें ये शो करना था B इज़ इक्वल्स टू R। तो A B के एंड A इज़ कंटेन्ड इन B implies इसके देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट B belongs to B which does not
belong to A, that is B doesn't belongs to A. क्योंकि हमें गिवन था कि A इज़ नॉट इक्वल्स टू B है और A इज़ कंटेन्ड इन B है, तो एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा B में जो कि A में नहीं होगा. सिंस B doesn't belongs to A implies B plus A is not equals to A, क्योंकि A plus H तब होता है इफ़ एंड ओनली इफ A belongs to H. ये कोसेट की प्रॉपर्टी है. तो B बिलोंग नहीं कर रहा है A को, तो B plus A is not equals to A implies B plus A is not equals to zero element of R by A factoring. Zero element of R by A factoring का ये होता है. तो B plus A is non zero element of the factoring R by A. B plus A is a non zero element of the factoring R by A, and we know that every non-zero element in a field has a multiplicative inverse. क्योंकि हमने R by A को पहले फील्ड माना है और B plus A नॉन ज़ीरो एलिमेंट है R by A का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा R by A में. देन तो लेट अस अज्यूम दैट कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स R by A में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि R by A फील्ड है और B plus A नॉन ज़ीरो एलिमेंट है. तो देयर एग्जिस्ट C plus A belongs to R by A, where C belongs to R, such that B plus A dot C plus A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है C plus A B plus A का, that is 1 plus A. ये क्या है? यूनिट एलिमेंट ऑफ द फैक्टर रिंग R by A. तो जैसे हमने डॉट ऑपरेशन डिफाइन करी थी फैक्टर रिंग में, उस ऑपरेशन के तहत B डॉट C प्लस A इक्वल्स टू 1 प्लस A. और कोसेट की एक प्रॉपर्टी होती है डेट A प्लस H इक्वल्स टू B प्लस H इफ़ एंड ओनली इफ A माइनस B बिलोंग्स टू H. तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम, तो हम ये कह सकते हैं 1 माइनस BC बिलोंग्स टू A. 1 माइनस BC बिलोंग्स टू A एंड A इज़ कंटेन्ड इन B है, इम्प्लाई करेगा 1 माइनस BC बिलोंग्स टू B. ऑल्सो B बिलोंग कर रहा है B को, C बिलोंग कर रहा है R को, और B इज़ एन आइडियल ऑफ R. देन आइडियल कंडीशन से आइडियल एब्जॉर्ब कर लेता रिंग के एलिमेंट को, तो BC बिलोंग करेगा B को. ठीक है. और सो 1 माइनस BC बिलोंग कर रहा है B को एंड BC बिलोंग कर रहा है B को, हमने ऊपर शो कर दिया. और हम जानते हैं B इज़ एन आइडियल ऑफ R implies B is a subring of R implies B is a ring in itself. B is a ring in itself implies closure with respect to plus holds in B. तो 1 माइनस BC भी बिलोंग कर रहा है B को एंड BC भी बिलोंग कर रहा है B को, तो ये भी बिलोंग करेगा B को, क्योंकि B एक आइडियल है R का. तो दिस एम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू B. हमारा एम है शो करना है कि R इज़ कंटेन्ड इन B. तो लेट एनी आर्बिट्री एलिमेंट R बिलोंग्स टू R. तो हमें शो करना है कि ये अब इस एलिमेंट R को हमें दिखाना है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि R इज़ कंटेन्ड इन B. तो नाउ R बिलोंग्स टू R एंड 1 बिलोंग्स टू B हमने ऊपर शो किया, और B
इज़ एन आइडियल, ये हमें दिया हुआ है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। तो आर डॉट वन आइडियल की प्रॉपर्टी से, जहाँ आर रिंग का एलिमेंट है, वन बी का आइडियल का एलिमेंट है, आइडियल एब्जॉर्ब कर लेता है रिंग के एलिमेंट को, तो ये आर डॉट वन भी बी का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि बी एक आइडियल है। 1 यूनिट है रिंग आर की, तो आर डॉट वन इक्वल्स टू 1 डॉट आर इक्वल्स टू आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। तो आर बिलोंग्स टू बी दिखा दिया हमने, एक आर्बिट्री एलिमेंट आर से लिया, उसको बी में दिखा दिया, तो हम ये कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट आर इज कंटेन्ड इन बी। तो डबल स्टार, और हमने जो पीछे इक्वेशन स्टार मार्क करी थी, स्टार और डबल स्टार से वी कैन कंक्लूड दैट आर इज इक्वल्स टू बी। हेंस ए इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। सो कन्वर्स पार्ट, तो हम अज्यूम करेंगे लेट ए बी अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है टू शो डेट आर बाई इज़ अ फील्ड, ये हमें शो करना है। और हमें दिया क्या हुआ है, सिंस आर इज़ अ CRU कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो आर बाई ए को फील्ड शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा आर बाई ए इज़ अ रिंग, फिर उसके बाद हमें कम्यूटेटिविटी फैक्टरिंग की शो करनी पड़ेगी, यूनिटी एग्जिस्ट कर रहा है वो शो करना पड़ेगा। तो हमने अभी एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टरिंग में पढ़ा था, अभी आर बाई ए इज़ अ फैक्टर रिंग इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने ये यहाँ पे ये एज्यूम किया है ए इज़ अ मैक्सिमल आइडियल, तो ए मैक्सिमल आइडियल है, तो ये इम्प्लाई करता है ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर। तो एग्जिस्टेंस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ए आइडियल है आर का, तो आर बाई ए इज़ अ फैक्टरिंग, आर बाई ए को हमने प्रूव कर दिया हमने। तो अब हमें सिर्फ प्रूव करना है कि आर बाई ए इज़ कम्यूटेटिव। सेकेंड, आर बाई ए हैज़ यूनिट एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, और आर बाई ए कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डॉट ही शो करना है। और थर्ड, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट in R by A has multiplicative inverse in R by A। तो हम एक एक करके प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट R by A is commutative। So let us assume any two arbitrary element a plus a belongs to R by A and b plus a belongs to R by A। कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया हमने फैक्टरिंग के, जहाँ पे a भी बिलोंग कर रहे हैं R को। तो कम्यूटेटिविटी शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा a प्लस a डॉट b प्लस a इक्वल्स टू b प्लस a डॉट a प्लस a। तो कंसीडर कर सकते हैं हम LHS को a प्लस a डॉट b प्लस a इक्वल्स टू, जैसे कि हमने फैक्टरिंग में ऑपरेशन डिफाइन करे थे उसी के इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं। और हमें ये दिया हुआ है कि R इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, हमें गिवन है, और a और b बिलोंग कर रहे हैं R को, तो a डॉट b डॉट a के बराबर होगा, क्योंकि R कम्यूटेटिव है। तो इधर से a डॉट b को b डॉट a लिख सकते हैं प्लस a, और जैसे कि डॉट ऑपरेशन डिफाइंड है हमने b प्लस a डॉट a प्लस a, तो हमने RHS प्रूव कर दिया। तो हमने ये शो कर दिया कि R बाई ए इज़ कम्यूटेटिव, क्योंकि a प्लस a एंड b प्लस a आर आर्बिट्री एलिमेंट, कम्यूटेटिव रिंग। अब हमें शो करना है कि R बाई ए के पास यूनिटी है,
R by A has element. Since R is a CRU, R is a commutative ring with unity, implies 1 belongs to R, and because 1 belongs to R, then 1 plus A belongs to R by A. Now we have to show that A plus A, 1 plus A equals to 1 plus A dot A plus A equals to A plus A, where A is any arbitrary element of ring R. So consider A plus A, 1 plus A. जैसे डॉट ऑपरेशन में डिफाइन किया हुआ रिंग में, तो A डॉट 1 प्लस A, हमें रिंग कम्यूटेटिव दे रखी है, तो A बिलोंग कर रहा है रिंग को, 1 बिलोंग कर रहा है R को, तो A डॉट 1 इक्वल्स टू 1 डॉट A हम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू A लिख सकते हैं। जैसे कि हमने डॉट ऑपरेटिंग में डिफाइन किया हुआ उसकी मदद से हम लिख सकते हैं 1 प्लस A डॉट A प्लस A। नाउ हमने A प्लस A डॉट 1 प्लस A को इक्वल टू प्रूव कर दिया 1 प्लस A डॉट A प्लस A। नाउ वी हैव टू शो दैट A प्लस A डॉट 1 प्लस A इक्वल्स टू A प्लस A। तो ये इजीली प्रूव किया जा सकता है। जैसे डॉट ऑपरेशन हमने डिफाइन किया फैक्टरिंग में, उसी से हम लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू R और 1 यूनिट एलिमेंट है रिंग का, तो A डॉट 1 इक्वल्स टू 1 डॉट A इक्वल्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। क्योंकि 1 यूनिट है तो A डॉट 1 को हम A से रिप्लेस कर सकते हैं, A प्लस A। तो हमने ऊपर वाला प्रूव कर दिया। तो वी कैन कंक्लूड R बाय A हैज़ अ एलिमेंट दैट इज 1 प्लस A। थर्ड प्रॉपर्टी शो करनी है दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट in R by A has multiplicative inverse. Every non-zero element in R by A has multiplicative inverse. So let B plus A be an arbitrary non-zero element of the ring R by A. Then we have to show it has multiplicative inverse in R by A। तो इसके लिए हमें फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे एक सेट B इक्वल्स टू स्मॉल b R प्लस A, जहाँ R बिलोंग कर रहा है R को, A बिलोंग कर रहा है आइडियल A को। ऑल वी विल शो दैट B इज एन आइडियल ऑफ R such that A is contained in B। हम शो करेंगे कि B is नॉन एम्प्टी, तो B डॉट 1 प्लस 0 बिलोंग्स टू B implies B is non empty because 1 belongs to R and 0 belongs to B, क्योंकि B एक आइडियल है, आइडियल तो रिंग है तो उसके पास 0 एलिमेंट होगा। और सेकंड हम आइडियल टेस्ट की सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, डेट इज़ कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया सेट का BR1 प्लस A1 और एक और आर्बिट्री एलिमेंट लिया BR2 प्लस A2 बिलोंग्स टू B, जहाँ पे R1 R2 बिलोंग्स टू रिंग R एंड
A1 A2 belongs to ideal A, then we have to show that दोनों आर्बिट्री एलिमेंट डिफरेंस बिलोंग कर रहा है B को, दैट इज BR1 प्लस A1 माइनस BR2 प्लस A2. तो विथ रिलेटिविटी वी कैन राइट BR1 माइनस BR2 प्लस A1 माइनस A2 बाय कम्यूटेटिविटी. डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करती है रिंग में. बी भी रिंग का एलिमेंट है, R1 और R2 दोनों रिंग के एलिमेंट हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशंस की प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और A1 माइनस A2 इधर है. सिंस R1 बिलोंग कर रहा है R को, R2 बिलोंग कर रहा है R को, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस R2 बिलोंग करेगा R को, और क्लोजर कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज़ R1 माइनस R2 बिलोंग करेगा R को. और सिमिलरली A1 बिलोंग कर रहा है A को, A2 बिलोंग कर रहा है A को. A2 एक आइडियल है. आइडियल टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन से दो एलिमेंट आइडियल के उन दोनों डिफरेंस भी A1 माइनस A2 भी बिलोंग करेगा A में. तो यहाँ से वी गेट R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू R एंड A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू A. तो ये पूरा एलिमेंट हो गया, ये पूरा एलिमेंट बिलोंग कर गया B को. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आइडियल टेस्ट की. तो हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है आइडियल टेस्ट की. तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट BR1 प्लस A बिलोंग्स टू B ले लिया और एक आर्बिट्री एलिमेंट T बिलोंग्स टू R ले लिया. तो हमें ये शो करना है कि आइडियल एब्जॉर्ब कर रहा है रिंग के एलिमेंट को. तो हमें कंसिडर करना है BR1 प्लस A डॉट T बिलोंग्स टू B शो करना है हमें. तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी से हमने ये लिखा BR डॉट T, और विथ एसोसिएटिविटी क्योंकि B भी रिंग का एलिमेंट है, R भी रिंग का एलिमेंट है और T भी रिंग का एलिमेंट है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है. तो BR प्लस AT ये हो गया. ये भी बिलोंग करेगा B क्योंकि R बिलोंग्स टू R, T बिलोंग्स टू R, देन RT शुड बिलोंग टू R. तो ये रिंग का एलिमेंट हो गया और आइडियल है, और A बिलोंग्स टू A है और T बिलोंग्स टू R है, और A एक आइडियल है रिंग R का. तो A डॉट T भी बिलोंग करेगा, आता है रिंग के एलिमेंट का ऑब्जर्व कर लेता है. तो ये एलिमेंट हो गया A का. तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस बिलोंग्स टू B. तो सिमिलरली वी कैन शो दैट T belongs to R and BRA belongs to B, then T BR1 plus A belongs to B. सो आइडियल टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो हम ये कह सकते हैं B इज़ एन आइडियल ऑफ R. शो कर दिया B इज़ एन आइडियल ऑफ R. अब हम ये शो करेंगे दैट जो A मैक्सिमल आइडियल है वो कंटेंट है B में. तो लेट एक आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ आइडियल A, देन A को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डॉट B प्लस A बिलोंग्स टू B. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R रिंग है तो उसके पास 0 है. तो A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो A बिलोंग्स टू B आ गया क्योंकि A आर्बिट्री एलिमेंट था A का जिसको हमने B में भी दिखा दिया. तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं, ये इम्प्लाई करता है कि A इज़ कंटेन्ड इन B. सो B इज़ एन आइडियल ऑफ R containing A. लेकिन we are given that A is a maximal ideal. तो A मैक्सिमल आइडियल है और B को ये क्या आइडियल मिल गया हमें जो कि प्रॉपरली कंटेन कर रहा है A को, और A मैक्सिमल आइडियल है. तो B को रिंग के बराबर होना पड़ेगा, रिंग R के बराबर. और हम यहाँ पे हम ये क्यों लिख पा रहे हैं कि A इज़ प्रॉपरली कंटेन इन B? बिकॉज हमने सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट B प्लस A बिलोंग किया था रिंग R बाय A का. ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इम्प्लाइज B डजंट बिलोंग्स टू A.
तो हम बी के एलिमेंट जो कि बी आर प्लस ए टाइप के हैं, वेयर आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए, तो हम क्योंकि ए आइडियल है तो ए सब रिंग अपने आप में सब रिंग है, तो रिंग है तो इसका ज़ीरो भी होगा, तो हम ए को ज़ीरो ज़ीरो लेंगे और आर को 1 लेंगे, देन बी बिलोंग्स टू बी आ जाएगा। लेकिन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इधर बी प्लस ए को नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था फैक्टरिंग आर बाय ए का, करता है कि बी डजंट बिलोंग्स टू ए, लेकिन बी बिलोंग्स टू बी है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ए इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया बी इज इक्वल्स टू आर। नाउ वी कैन राइट सिंस 1 बिलोंग्स टू आर यूनिटी इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू आर के दोनों 1 बिलोंग्स टू बी बिकॉज दोनों सेट इक्वल है, बी इज इक्वल्स टू आर। तो हम 1 को बी के एलिमेंट जिस फॉर्म में उसमें लिख सकते हैं बी आर प्लस ए टाइप में लिख सकते हैं, जहाँ आर बिलोंग्स टू रिंग एंड ए बिलोंग्स टू आइडियल ए टाइप में लिखा जा सकता है। इस फॉर्म का होगा 1, सो दैट इज़ 1 इक्वल्स टू बी आर प्लस ए वेयर आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आइडियल ए। सो हम दोनों इधर कोसेट प्लस ए, सिंस कोसेट की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी प्लस एच, जहाँ ए और बी रिंग के एलिमेंट हैं, ए प्लस बी प्लस एच। तो इधर इसको ऐसे भी लिखा जाता है बी आर प्लस ए, और वी नो दैट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। कोसेट की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस एच इक्वल्स टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से बी आर प्लस ए। सो और फैक्टरिंग में जैसा ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन डिफाइंड होता है, तो इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर लिख सकते हैं बी प्लस ए आर प्लस ए। तो हम फाइनली हमें मिला है 1 प्लस ए इक्वल्स टू बी प्लस ए डॉट आर प्लस ए, और हमने बी प्लस ए एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था रिंग फैक्टरिंग आर बाय ए का, जिसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर बाय ए मिल गया, जो दैट इज़ आर प्लस ए इज़ द multiplicative inverse of an arbitrary non-zero element b plus a. So we can conclude that r by a is a field. तो कन्वर्स पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। हमने आज ये थ्योरम करी, इसका एक ब्रीफ रिव्यू दे सकता हूँ मैं आपको। थ्योरम थी लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी and let A be an ideal of R, then R by A is a field if and only if A is maximal ideal। तो इसका प्रूफ हमने स्टार्ट किया R by A को फील्ड मान के, और हमें शो करना था कि A इज़ मैक्सिमल है। तो ये मैक्सिमल आइडियल के लिए हमने एक कोई भी आइडियल ले लिया रिंग R का, और ये दिखा दिया कि A इज़ कंटेंड प्रॉपरली कंटेंड इन B एंड B इज़ कंटेंड इन R। तो हमें शो करना था आइदर A इज़ इक्वल्स टू B और B इज़ इक्वल्स टू R। अगर हमें ये शो करना है कि A मैक्सिमल आइडियल है तो हमें ये शो करना पड़ेगा। और अगर हम A इक्वल्स टू बी दैट B इज़ कंटेंड इन R एंड R इज़ कंटेंड इन B, लेकिन B इज़ कंटेंड इन R हमने एज्यूम कर रखा है इधर ऊपर, तो हमें ये शो करना रह गया कि R इज़ कंटेंड इन B। तो ये शो करने के लिए हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि यूनिटी बिलोंग कर रहा है B को। तो सिंस R इज़ अ रिंग विथ यूनिटी, तो 1 बिलोंग्स टू R, तो हमें ये शो करना है 1 बिलोंग्स टू B। सिंस हमने ऊपर लिया है कि A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, तो A इज़ properly contained in B, तो there exists at least one element, unique element B belongs to B such that B doesn't belongs to A। तो B A से बिलोंग नहीं कर रहा, तो B plus A is not equals to A, क्योंकि कोसेट की प्रॉपर्टी होती है A plus H equals to H if and only if A belongs to H। तो B plus A is not equals to 0 plus A implies B plus A is a non-zero element of R by A। और R by A को हमने फील्ड लिया था, तो हम जानते हैं एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन द फील्ड। तो B plus A नॉन जीरो एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट
and multiplicative inverse of that element, that is c plus a we have assumed, where c belongs to ring R. तो फिर b प्लस ए को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स c प्लस ए से डॉट करने पे हमें यूनिट एलिमेंट मिला रिंग r बाई ए का। तो जैसे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन डिफाइंड है वेक्टर रिंग में b डॉट c प्लस ए इक्वल्स टू 1, कोसेट की प्रॉपर्टी होती है a प्लस एच इक्वल्स टू b प्लस एच, इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू एस, तो 1 माइनस बी सी इक्वल्स टू बिलोंग्स टू ए आ गया, और a इज कंटेन्ड इन b हमने पहले प्रूव कर रखा था, तो इम्प्लाई कर रहा है, तो 1 माइनस बी सी बिलोंग्स टू b ये इम्प्लाई करता है, और b बिलोंग्स टू b है, c बिलोंग्स टू रिंग r है, और b एक आइडियल है, तो बी से बिलोंग्स टू बी होगा क्योंकि आइडियल एब्जॉर्ब कर लेता रिंग के एलिमेंट को। 1 माइनस बी से बी में बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग में रिंग बी में बिलोंग कर रहा है आइडियल में, और बी एक आइडियल ऑफ रिंग आर है। रिंग आइडियल है तो अपने आप में सब रिंग ऑफ आर है, सब रिंग है तो अपने आप रिंग है तो क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस होल्ड करेगा, तो इधर क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, तो 1 माइनस बी सी प्लस बी सी बिलोंग्स टू बी कर जाएगा, इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू बी, और हमारा एम था आर इज कंटेन्ड इन बी शो करने का, तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया r बिलोंग्स टू r। नाउ वी हैव टू शो दैट r बिलोंग्स टू दिस r बिलोंग्स टू b, तो हमने r बिलोंग्स टू r ले लिया और हमने 1 बिलोंग्स टू b ऊपर दिखाया, और b एक आइडियल है तो रिंग के एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता, तो r डॉट 1 बिलोंग्स टू b हो गया क्योंकि b आइडियल है, और 1 यूनिटी ऑफ रिंग r है, तो r डॉट 1 इक्वल्स टू 1 डॉट r इक्वल्स टू r फॉर ऑल r बिलोंग्स टू r, इम्प्लाई करेगा r बिलोंग्स टू b। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट रिंग r का लिया, उससे दिखा दिया हमने b में बिलोंग करता, तो हम वी कैन कंक्लूड दैट r इज़ कंटेन्ड इन b। तो हमने पीछे इक्वेशन स्टार उससे डबल स्टार से हम कंक्लूड कर सकते हैं r इज़ इक्वल्स टू b, तो यहाँ से a इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ r आ गया है। और कन्वर्स पार्ट के लिए हमने a को मैक्सिमल आइडियल लिया, हमें शो करना है r बाई ए इज़ अ फील्ड, तो हमें दे रखा है r इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, तो r बाई ए इज़ अ फैक्टर रिंग, हमने एग्जिस्टेंस में पढ़ा था कि r बाई ए इज़ अ रिंग इफ़ एंड ओनली इफ a इज़ एन आइडियल, तो a इज़ मैक्सिमल आइडियल दिया हुआ है, मैक्सिमल आइडियल है तो अपने आप में आइडियल तो है ही, तो आइडियल है तो r बाई ए इज़ रिंग हो जाएगी। तो अब फील्ड प्रूव करने के लिए हमें तीन और प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, दैट r बाई ए इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, r हैज़ अ यूनिट एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन r बाई ए हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन r बाई ए। तो फर्स्ट हमने शो किया r बाई ए इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, तो दो आर्बिट्री एलिमेंट a प्लस ए एंड b प्लस ए बिलोंग्स टू r बाई ए ले लिया, जहाँ पे a भी बिलोंग्स टू r है, तो हमने इनको दिखाया कि कम्यूटेटिव होल्ड करती है, हमने LHS लिया, कंसीडर किया, फिर a डॉट बी कुछ b डॉट ए लिख दिया क्योंकि r कम्यूटेटिव रिंग है, तो फॉर ऑल ए बी ये ट्रू है, ये कंडीशन होल्ड करती है, तो वहाँ से हमने b प्लस ए डॉट ए प्लस ए लिख दिया, तो r बाई इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग वहाँ से आ गया। फिर हमें शो करना था r बाई ए हैज़ अ यूनिट एलिमेंट, r कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो 1 बिलोंग्स टू r है, तो 1 प्लस ए बिलोंग्स टू r बाई ए हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट a प्लस ए, ये कंडीशन शो करनी थी, तो ये हमने ऐसे शो कर दी है जैसे डॉट ऑपरेशन फैक्टरिंग में डिफाइंड थे, वैसे कंडीशन लगाई और ये प्रूव हो गया यहाँ तक। तो r बाई ए हैज़ अ यूनिट एलिमेंट इन यूनिट एलिमेंट है r बाई ए फैक्टरिंग के पास जो कि है 1 प्लस ए, और थर्ड हमें शो करना था एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन r बाई ए हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट आर्बिट्री नॉन जीरो एलिमेंट लिया b प्लस ए डजेंट इक्वल्स टू 0 प्लस ए, इम्प्लाई करता है b डजेंट बिलोंग्स टू a। हमें ये शो करना है कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हमने एक सेट कंसीडर किया बी आर प्लस ए, जहाँ r बिलोंग्स टू रिंग एंड a बिलोंग्स टू आइडियल a, जो कि यहाँ मैक्सिमल आइडियल है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शो करेंगे b एक आइडियल है, और दूसरा ये शो करेंगे a इज़ प्रॉपर्ली कंटेन्ड है। तो हमने इधर आइडियल टेस्ट लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये शो किया कि b इज़ नॉन एम्प्टी, जहाँ पे a आइडियल था, तो आइडियल है तो सब रिंग है तो रिंग है अपने आप में, तो आइडेंटिटी होगा उसके पास, तो 0 है, यूनिटी रिंग के पास है, तो इधर b बिलोंग्स टू b आ गया, तो b इज़ नॉट आ गया। उसके बाद आइडियल टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन, अब इफ़ a भी बिलोंग्स टू एन आइडियल a देन a माइनस बी शुड बिलोंग्स टू आइडियल a। तो हमने दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए, फिर उनका डिफरेंस रिंग की प्रॉपर्टी लगाई और प्रूव कर दिया कि उनका डिफरेंस बिलोंग कर रहा है। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन होती है दैट इफ़ a बिलोंग्स टू a एंड r बिलोंग्स टू r देन a डॉट r एंड r डॉट a शुड बिलोंग्स टू a, देन a इज़ एन आइडियल। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया b का, उसका डॉट किया t के साथ, उसके बाद फिर कंडीशन लगाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, और रिंग की प्रॉपर्टीज हमने जो दिखाया वो भी b में है, और सिंस r बाई को कम्यूटेटिव हम प्रूव कर चुके हैं, तो उसका b r1 प्लस a बिलोंग्स टू b भी हम वैसे ही शो कर देंगे। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आइडियल टेस्ट की, तो हम ये कह सकते हैं b इज़ एन आइडियल ऑफ r।
तो अब हमें दिखाना है कि ए इज़ प्रॉपर्ली कंटेन इन बी। तो हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए का लिया और ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि आर रिंग है, रिंग के पास यूनिट 0 एलिमेंट होता है, तो 0 बी प्लस ए फॉर्म में लिख सकते हैं बी ए को। और उससे हमने दिखा दिया ए बिलोंग्स टू बी, तो ए उससे हम ए इज़ कंटेन बी लिख सकते हैं। ए इज़ प्रॉपर्ली कंटेन बी है क्योंकि बी बिलोंग्स टू बी है, लेकिन बी डजंट बिलोंग्स टू आर है, जो हम पहले बता चुके हैं। और हमें दिया हुआ है ए इज़ मैक्सिमल आइडियल, तो बी इज़ इक्वल्स टू आर ही होना पड़ेगा उसको। फिर बी इक्वल्स टू आर है तो आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, आर के पास यूनिटी है तो 1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 बी और आर बराबर हैं तो 1 शुड बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। तो बी के एलिमेंट इस फॉर्म के हैं बी आर प्लस ए टाइप के, तो 1 इक्वल्स टू बी आर प्लस ए। फिर हमने कोसाइड ऐड किया सेम एलिमेंट पे, 1 प्लस ए इक्वल्स टू बी आर प्लस ए। फिर कोसाइड की प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस एच, तो वो लगाई। और फिर कोसाइड की प्रॉपर्टी ए प्लस एच इक्वल्स टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। सिंस ए बिलोंग्स टू आइडियल ए, तो ए प्लस ए कैन बी रिटन एज ए, तो बी आर प्लस ए। फिर डॉट प्रोडक्ट जैसे हमने डॉट जैसे डिफाइन किया हुआ है हमने फैक्टरिंग में बी प्लस ए डॉट आर प्लस ए। तो हमारा बी एक नॉन जीरो एलिमेंट था जिसके लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर प्लस ए मिल गया। Since r plus a is a arbitrary element that has multiplicative inverse, so we can conclude that r by is a field. This completes the proof. Thank you for watching.